زندہ سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، اپنے وعظ کے عنوان پر آنے سے پہلے آج کی جو تاریخ ہے اس کو یاد کیے بغیر اور اس کا حوالہ دیے بغیر آگے چلا جانا ایک لحاظ سے بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اگر کسی کو نہیں معلوم تو ان کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ 17 اگست حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا یوم امامت تھا، اور کئی اشروں تک جماعت نے اس کو امامت ڈے کے طور پہ منایا ہے، اور ہمارے پچھلے امام کے جو احسانات ہماری جماعت پر ہیں ان کو تاریخ ہمیشہ زندہ رکھے گی، اور آنے والی تمام نسلیں اس کے لیے ہمارے پچھلے امام کی شکر گزار رہیں گی۔ چونکہ آج یہ تاریخ ہے اس لیے اس کو ہم ایسے ہی یاد کیے بغیر نہیں جانے دے سکتے ہیں۔ آج ہم روحانی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور روحانی مجلس کا جو نام ہے یہ خود ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم روح کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ ایکٹیویٹی، ہمارا یہ کام، ہماری یہ مجلس، اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے۔ ہم اپنی روح کو فیض پہنچانے کے لیے اور گزری ہوئی روحوں کو فیض پہنچانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جب ہم روحانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو شاید بہتوں کے ذہنوں میں کوئی ایسا تصور آتا ہے کہ روحانی زندگی ہماری اس زندگی سے الگ تھلگ کوئی چیز ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی گزارتے ہیں، اس میں سے ہم کو نکل کے کوئی خاص زندگی میں جانا پڑتا ہے کہ جس کو ہم روحانی زندگی کہیں۔ حالانکہ روحانی زندگی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ روحانی زندگی ہماری اس زندگی سے جداگانہ یا اس زندگی سے الگ تھلگ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنی روحانی زندگی اسی زندگی کے اندر گزارتے ہیں۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے کئی بار اپنے فرمان میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہماری روحانی زندگی، ہماری روح، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ وہ ہماری روزمرہ زندگی سے الگ تھلگ کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت دفعہ شاید ہم یہ سمجھنے میں غلطی کر لیتے ہیں کہ ہم کوئی جسمانی مخلوق ہیں، اور جب ہم جماعت خانے آتے ہیں یا عبادت میں بیٹھتے ہیں یا میڈیٹیشن میں بیٹھتے ہیں تو ہم کوئی روحانی تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے برعکس ہے۔ ہم روحانی مخلوق ہیں، بنیادی طور پر ہم روحانی مخلوق ہیں۔ ہماری اصلی زندگی، ہماری ابدی زندگی روحانی زندگی ہے، اور اس میں سے ہم ایک چھوٹا سا وقت، ایک چھوٹی سی مدت جسمانی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم ایک روحانی مخلوق وقتی طور پر جسمانی تجربات کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ روح کو ایک جسم دیا گیا ہے، اس لحاظ سے اس کے ساتھ کچھ جسمانی تقاضے وابستہ کر دیے گئے ہیں، ورنہ اصل جو ہے وہ ہماری روحانی زندگی ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو معجزات سے، میریکل سے بھرپور زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی کو روحانی ہونا ضروری ہے۔
اور جو روحانی زندگی ہوتی ہے اس کی کچھ علامتیں ہیں، اور یہ علامتیں وہ نہیں ہے کہ جو ہم دوسروں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں، کہ جس کے بارے میں ہم کچھ جان کر دوسروں پہ کوئی فیصلہ نافذ کرنے یا دوسروں کے بارے میں کوئی ججمنٹ دینے کی کوشش کریں، بلکہ اس سے ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آیا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ کس حد تک روحانی ہے، وہ روحانی ہے بھی یا نہیں، اور اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے روحانی زندگی گزارنی چاہیے، یا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں روحانی زندگی گزار رہا ہوں مگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میری زندگی میں نہیں پائی جاتی ہے، تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو آج ہم چند ایسی علامتوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں کہ ایک روحانی زندگی گزارنے والے کی زندگی میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہے، کیا ان کی بنیادیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ غیر روحانی زندگی گزارتے، ہم اس کو غیر مذہبی نہیں کہتے، ہم ان کو برا بھی نہیں کہتے، ہم کوئی ججمنٹ ان کے بارے میں نہیں دیتے، جو لوگ غیر روحانی قسم کی زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی زندگی اپنے 5 حواس کے دائرے میں ہی گزارتے ہیں، جن کو ہم 5 سینسز کہتے ہیں۔ اس سے باہر وہ کسی اور زندگی کے بارے میں ان کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ہمارے جو 5 حواس ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں کو یا تو دیکھتے ہیں، یا اس کے بارے میں سنتے ہیں، یا اس کو ہم سونگھ سکتے ہیں، یا اس کو ہم چکھ سکتے ہیں، یا اس کو ہم مس کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے 5 سینسز ہیں۔ کسی بھی چیز کی موجودگی کو انسان جسمانی طور پر اپنے ان 5 حواس سے محسوس کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے احساسات ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے یا سنا ہے، یا ان کو سونگھا ہے، یا ان کو چکھا ہے، یا اس کو ہم نے ٹچ کیا ہے۔ اس کے باہر کی دنیا جو ہے، اگر کسی شخص کے ان 5 حواس کے تجربے میں کوئی چیز نہیں آتی اور وہ اس کے وجود کو قبول نہیں کرتا، یا اس کے وجود سے انکار کرتا ہے، یا اس سے کوئی تعلق نہیں سمجھتا اپنا، تو اس کی زندگی روحانی زندگی شمار نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے علم کا دائرہ، اس کے محسوسات کا دائرہ جسمانی ہے۔ مگر جو روحانی زندگی گزارتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ملٹی سینسری۔ یہ ہم نے 5 سینسز کی بات کی ہے، مگر روحانی زندگی گزارنے والے ملٹی سینسری لائف گزارتے ہیں، جو ان 5 حواس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے حواس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس سے ان کو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا علم ان 5 حواس کے ذرائع تک ہی محدود ہو، بلکہ اس کے بیونڈ، اس کے باہر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن تک شاید ہمارے حواس نہ پہنچ سکتے ہوں، مگر ان کی زندگی ہوتی ہے اور ان کا وجود ہوتا ہے۔ ان پر جو روحانی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں ان کا یقین ہوتا ہے اور ان کا ایمان ہوتا ہے۔ جو غیر روحانی قسم کی زندگی گزارتے ہیں، دوسری بات، وہ اس کائنات میں اپنے آپ کو، یعنی انسان کو اور اپنے وجود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی، جب ہم مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو بس ہم ہیں اور یہ حیوانات جو ہمیں نظر آتے ہیں، بس یہی مخلوقات ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کسی روحانی مخلوق، خدا جیسی کوئی ہستی، فرشتوں جیسا کوئی وجود، ایسی روحانیاں کہ جو آپ کو مدد کر سکتی ہیں، جو آپ کے ساتھ رابطہ قائم کرتی ہیں، جو آپ کی بھلائی کے لیے آپ کے آس پاس آپ کے قریب ہوتی ہے،
उन चीज़ों पर उनका कोई यकीन नहीं होता, उनका कोई अकीदा नहीं होता। मगर जो रूहानी जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो अपने अलावा और बहुत सी रूहानी हस्तियों पर अकीदा और ईमान रखते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने मलाइका का जिक्र किया है, फरिश्तों का जिक्र किया है, अरवाह का जिक्र किया है। अल्लाह ताला आसमानों और जमीन में अपने फौजों का तस्करा करता है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की फौजें, आसमानों और जमीन की आर्मी जो है वो अल्लाह की है। यह आसमानों और जमीन की आर्मी क्या है? ये अल्लाह की रूहानी मखलूक़ात है। हम जो दुआएं मांगते हैं, हम जो प्रेयर करते हैं अपनी मुश्किलात के आसानी के लिए और अपनी उम्मीदों की तकमील के लिए, हम जो दुआएं मांगते हैं उसके पीछे हमारा क्या अकीदा होता है? उसके पीछे हमारा ये अकीदा है कि कायनात में अल्लाह ताला की ऐसी कुव्वतें काम कर रही होती है जो आपकी दुआ को पूरी करने में मदद देती है। और इसलिए दीन के अंदर दीनदार और रूहानी इंसान प्रेयर पे, दुआओं पे बड़ा यकीन रखता है। वो अपने मुश्किलात की आसानी और उम्मीदों की तकमील के लिए दुआएं मांगता रहता है। उनका ये अकीदा होता है और हकीकत ये है कि जब हम कोई दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला भी फरमाता है कि इंसान जब कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह को शर्म आती है कि वो उसे कभी खाली हाथ वापस लौटाए। अल्लाह कभी हमारी दुआओं को खाली हाथ वापस नहीं लौटाता, मगर अल्लाह किस तरह जवाब देता है वो हमारी समझ में नहीं आता। अल्लाह ने किस तरह हमारी दुआ पूरी कर ली वो हमको समझ में नहीं आता। हम एक ही दरवाजे को ठोकते रहते हैं, हमें ये खोल दे, ये खोल दे, खोल दे, एक छोटे बच्चे की तरह। अल्लाह पीछे से 100 दरवाजे हमारे लिए खोल चुका होता है, मगर हम मुड़ के देखने को तैयार नहीं होते हैं। तो कहते हैं जब तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो, when you pray be prepared for the unexpected, जब तुम दुआ मांगते हो तो उस चीज के लिए तैयार रहो जिसकी तुमको तवक्को नहीं थी कि मुमकिन है अल्लाह का जवाब किसी और तरीके से आए। क्योंकि जैसे ही हम कोई अच्छी दुआ मांगते हैं तो ये कायनात की जो अल्लाह की ताकतें हैं वो फौरन उसकी तकमील के लिए हरकत में आ जाती है। मगर अल्लाह हमारे हुक्म का मोहताज नहीं है, अल्लाह हमारे हुक्म का गुलाम नहीं है। अल्लाह के हुजूर में हम अर्ज करते हैं, अपनी अर्जी पेश करते हैं, अल्लाह को हम कमांड नहीं करते हैं, अल्लाह पे हम हुक्म नहीं चलाते हैं। ठीक है ना? तो जब अल्लाह के सामने हम अर्ज करते हैं तो वो कादिर मुतलक, वो हकीम जिस तरह खुद बेहतर समझता है, इस तरह हमारी दुआओं को तकमील करता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। इसलिए कहते हैं अल्लाह की आयात और अल्लाह की ज़बान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो रूहानी जिंदगी गुजारने वाले होते हैं उनके अकीदे में ये रूहानी ताकतें और रूहानी मखलूक़ात मौजूद होती है जो हर लम्हा उनकी ज़िंदगी में मौजिज़ात लाती रहती हैं, अल्लाह की इमदाद पहुंचाती रहती है और उनकी ज़िंदगियों को मौजिज़ात से भरपूर रखती है। जो गैर रूहानी ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी जो उन ताकत का सरचश्मा है, वो जिस किस्म की ताकतों पर ईमान और अकीदा रखते हैं वो ज़ाहिरी ताकत है। वो समझते हैं सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो है, हमारे जो पावर का मरकज है वो या तो जंग है, सियासत है, कानून है, तंजीम है, बिजनेस है, पैसा है, स्टॉक मार्केट है। ये इन चीजों से कंट्रोल करने की कोशिश करते। वो समझते हमारे पास अगर ये जराए मौजूद है, ये जराए हैं दुनिया में, आप देखें लोग इस्तेमाल करते हैं, बार बार उनका इस्तेमाल करते हैं, बार बार ठोकर खाने के बाद भी उसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी सीरत में, उनकी तबीयत में ये बात आ चुकी होती है।
तो वो ताकत का सरचश्मा जाहिर को समझते हैं, मगर जो रूहानी जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो अंदरूनी ताकत पर अकीदा रखते हैं, और वो कंट्रोल, दूसरों को कंट्रोल करने पर नहीं, दूसरों को ताकत फराहम करने पर अकीदा रखते हैं। आज आप एक बहुत अच्छी से मिसाल दे सकते हैं, दुनिया में जिस तरह लोग काम कर रहे हैं और इमाम ज़मान शाह करीम हुसैनी सलवातुल्लाह अलैहि काम कर रहे हैं। दुनिया में लोग, ममालिक, सियासी कुव्वतें अपने तमाम रिसोर्सेस, अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करते हैं दूसरों पे कंट्रोल हासिल करने के लिए, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लोगों पर अपना असर कायम रखने के लिए। उसके मुकाबले में इमाम ज़मान एम्पावरमेंट की बात करते। मौला कितनी दफा एम्पावरमेंट, दूसरों को पावर दो, दूसरों को इस काबिल बनाओ। खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए इमाम ज़मान कितना काम करते हैं कि इन्हें पढ़ाओ, न सिर्फ इन्हें पढ़ाओ, ये माली तौर पर खुद मुख्तार हो, अपने आप को संभाल सके। कितने लोग ये चाहेंगे कि उनके आसपास के लोग आजाद हो जाएं? लोग तो चाहते हैं कि दूसरे आजाद न हो ताकि उन पर हमारे कंट्रोल रहे, लोग कमजोर रहे ताकि उन पर हमारा काबू रहे। इमाम फरमाते लोगों को ताकतवर बनाओ ताकि तुम्हें किसी को कंट्रोल करने की जरूरत न पड़े, और जब तुम्हें किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जिसको किसी को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है वो इंसान कभी परेशान नहीं होता। परेशान वो होता है जो दूसरों पे काबू करना चाहता है। मार्केट गिरी है या मार्केट चढ़ी है, मुझसे क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर जो उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा फर्क पड़ता है कि आज मेरी ताकत में कितना फर्क आया, मेरी ताकत में कितना इजाफा हुआ। तो जाहिरी ताकत जो है वो कभी भी रिलायबल ताकत हो ही नहीं सकती। आप दुनिया में देख लीजिए, बड़ी सी बड़ी ताकतें, बड़ी सी बड़ी हुकूमतें, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज भी एक वक्त आने पर उनकी ताकत खत्म हो जाती है। उसके मुकाबले में जो इनफरादी अफराद होते हैं जो बातिन की ताकत पे भरोसा करते हैं, जो अंदर की ताकत पे भरोसा करते हैं, वो असली जिंदगी है। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, बाहर नहीं देख, जो कुछ है सो अंदर है। और अंदर की ताकत, मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने एक कंट्री के एक जमात में एक बहुत बड़े लीडर का अपॉइंटमेंट किया, तो वो उस ओहदे के लिए अपने आप में बहुत ही थोड़ा कमजोरी महसूस कर रहे थे कि खुदावन इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे उठाऊंगा, मैं कैसे ही काम करूंगा। तो इमाम ज़मान उनको फरमाते हैं, सीक हेल्प फ्रॉम योर इबादत। इमाम ये तो फरमाते इमाम तुम्हारे साथ है, इमाम आपकी मदद करते। मौला ने फरमाया इबादत से ताकत हासिल करो। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि जमा के 2 4 10 20 बड़े बड़े आदमियों को अपने साथ रख लो तुम ताकतवर बन जाओगे, कुछ पैसे वाले लोगों का ग्रुप बना लो, इन्फ्लुएंशियल लोगों का ग्रुप बना लो, तुम जमात में पावरफुल हो जाओगे। नहीं, इमाम ने फरमाया सीक हेल्प फ्रॉम योर इबादत, अपनी इबादत से मदद मांगो, क्योंकि जो पावर, जो ताकत तुम्हारे अंदर से है। पैगंबरों ने, इमामों ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला किया फौजों के जरिए से नहीं, अपने अंदर की कुव्वत के जरिए से, अपने अखलाक की कुव्वत के जरिए से, अपने बातिन की कुव्वत के जरिए से। तो जो गैर रूहानी जिंदगी गुजारते हैं उनकी नजर होती है एक्सटर्नल पावर पे, बाहर की पावर पे, और रूहानी जिंदगी गुजारने वाले समझते हैं कि अंदर की ताकत जो है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता।
बाहर की ताकत कभी भी हमारे हाथ से जा सकती है, मगर ईमान की क़ुव्वत, इबादत की क़ुव्वत, बातिन की क़ुव्वत, वो सबसे बड़ी ताकत है जो कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता। तो उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो एम्पावरमेंट और स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, और दूसरों को भी अपने साथ साथ वो ताकत देने की उनकी कोशिश होती है कि कोई आपका मोहताज न रहे, बल्कि आपसे रोशनी लेकर वो चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाए, और ऐसे हजारों चिराग जो है वो रोशन रहे। जो गैर रूहानी जिंदगी गुजारता है वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड जिसे हम कहते हैं, उसकी नजर हमेशा अपनी तरफ होती है, दूसरों की तकलीफ से बेगाना, दूसरों के मसाइल से बेगाना, अपने आप में रहना, बाकी सबको अपने से अलग, बाकी सबको जैसे कि हमारे दुश्मन है या हमारे कॉम्पिटिटर है या हमारे राइवल्स हैं और ये हमसे ये छीन लेंगे, हमारा ये ले लेंगे, दूसरों के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, रूहानी तौर पर दूसरों के साथ मुंसलिक नहीं होते हैं, अपने आप को सबसे अकेला, तन्हा, और उनकी नजर में सिर्फ अपनी फिक्र होती है, मेरा भला किस तरह हो, बाकी किसी का कुछ भी हो जाए। ये रवैया रखने वाले जो हैं वो दानिश्वर कहते हैं रूहानी जिंदगी नहीं गुजार रहे होते हैं, वो गैर रूहानी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके मुकाबले में जो रूहानी जिंदगी गुजारते हैं वो पूरी इंसानियत, बल्कि इंसानियत तो क्या पूरी कायनात के साथ अपने आप को कनेक्टेड समझते हैं। वो समझते हैं कि अल्लाह ने इंसान को इस कायनात से अलग थलग नहीं बनाया। क्या हम समझते हैं कि हम नेचर से जुदागाना कोई चीज है? अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात में सूरज, चांद, सितारे, शजर और हजर और दूसरे तमाम हैवान और फरिश्ते, ये सब एक तरफ है, और इंसान इन सब से अलग थलग कोई चीज है जिनका आपस में कोई लिंक, कोई ताल्लुक नहीं है? ऐसा नहीं है। हम सब इन्हीं के साथ हैं, हम भी इन्हीं का एक हिस्सा है, हम भी इसी नेचर का एक हिस्सा है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि नेचर के साथ हम आहंग रहो, नेचर के साथ हार्मोनाइज रखो अपने आप को। इंसान जब नेचर के साथ तसादुम में आता है तो इंसान दुखी होता है। इसलिए आप देखें इमाम ज़मान का अप्रोच भी क्या है, इमाम सारी इंसानियत को साथ में लेके चलते हैं। हम तो अभी अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर शायद हम अपने से दूसरी जबान बोलने वाले के साथ भी अपने आप को मिलाने के लिए शायद हम तैयार नहीं है। ये किस इलाके का है, ये कौन सी जबान बोलता है, ये किस किस्म का कपड़ा पहनता है, इसकी क्या सकाफत है, ये हमारी जमात के किस इलाके से, वो किस इलाके से है। और हाजिर इमाम क्या पैगाम देते हैं? गोल्डन जुबली की आयत क्या बताती है? या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन। सिल्वर जुबली की आयत जो मौला ने सिलेक्ट की थी वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू था। अब गोल्डन जुबली में इमाम ने या अय्युहन्नास की आयत सिलेक्ट की है कि अब दायरा और वसी हो गया है। सारी इंसानियत को जो चीज मुखातिब करती है, इमाम सारी इंसानियत की बिरादरी की बात करते हैं कि हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन। उस अल्लाह से डरो जिसने तुम सबको एक ही नफ्स से पैदा किया है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया है। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उनसे बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें फैला दी। तो ये जो 6-7 बिलियन इंसान दुनिया में फैले हुए हैं, एक मरकज से है, एक नफ्स से है, एक रूह से है, और हम इन सब के साथ कनेक्टेड है। जो रूहानी जिंदगी गुजारता है वो सिर्फ अपने वास्ते नहीं, सब के लिए सोचता है। जिसकी मिसाल इमाम ज़मान खुद है हमारे लिए कि सारी इंसानियत की वो फिक्र करते हैं, और सिर्फ एक ही मिशन के साथ कि दूसरों का भला किस तरह हो सकता है।
दूसरों को आसूदगी कैसे हासिल हो सकती है। तो जो लोग रूहानी जिंदगी गुजारते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, जब मैं सोचता हूं तो मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, मैं अपने फैमिली तक ही महदूद नहीं रहता, मैं अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखता हूं, मैं अपनी जमात के बारे में भी सोचता हूं, मैं अपने मुल्क के बारे में भी सोचता हूं। देखिए, रूहानियत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंसान जमात खाने में आके तस्बीह पढ़े या मस्जिद में जाके इबादत करे, सिर्फ वही रूहानियत नहीं है। इमाम ज़मान यही तो फरमाते हैं कि जब मैं स्पिरिचुअलिज्म कहता हूं, जब मैं रूहानियत कहता हूं, तो इसका मतलब दुनिया से फरार इख्तियार करके किसी एक जगह कोने में जाकर बैठ जाना। मौला ने फरमाया, मैं ये पैगाम नहीं देना चाहता तुमको, दुनिया से राय फरार इख्तियार करना नहीं, इसी दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला का जो मिशन है उसको हासिल करने की कोशिश करना। तो दूसरे इंसान की हमदर्दी, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए सोचना, ये भी रूहानी जिंदगी का हिस्सा है। और रूहानी जिंदगी गुजारने वाले अपनी जिंदगी में इसको जगह देते हैं। जो गैर रूहानी जिंदगी गुजारते हैं वो इस दुनिया को देखने में एक उनका साइंटिफिक अप्रोच इस तरह होता है कि वो कॉज एंड इफेक्ट, सबब और असर की दुनिया तक होते हैं। जिनका कोई सबब नहीं मिलता उनका उन्हें कोई असर भी नजर नहीं आता। ये कायनात, ये जो जाहिरी दुनिया हमारी है, ये फिजिक्स का लॉ है कि भाई हर सबब का एक असर होता है, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। आपने इसको धक्का दिया तो उसको धक्का लगा, वो किसी और को लगेगा तो उसको इतना धक्का लगेगा, उसने ये किया तो इसने ये किया, उसने ये किया तो उससे ये हो गया। हर चीज का अपना असर होता है। लेकिन जो रूहानी जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो सबब और असर से बालातर एक बहुत बड़े कानून में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वो इससे भी बड़े, ये तो हमने दरियाफ्त किया या हमने बताया इंसान के बनाए हुए कानून कि हर कॉज का, हर असर का एक कॉज होता है, हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। लेकिन हजारों लाखों करोड़ों चीजें इस कायनात में ऐसी है जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, और जो हमारे इन कवानीन की धज्जी उड़ा देती है अपनी हकीकी जिंदगी के अंदर भी। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि बुनियादी तौर पर हम रूहानी मखलूक हैं, हम जिस्मानी मखलूक नहीं है। और इस दुनिया में भी जिंदगी गुजारते हुए 99% से ज्यादा हम ख्यालात की दुनिया में होते हैं। हमें शायद पता नहीं होता हमारा कौन सा अमल, कौन सा काम ऐसा होता है जिसमें हमारे ख्यालात का दखल ना हो। हम कंटिन्यूसली हमारे ख्यालात, हमारे थॉट्स के डिक्टेशन पे काम कर रहे होते हैं ना। ये ख्यालात मादी चीज तो नहीं है ना। माइंड और ब्रेन में फर्क है ना। आपके ब्रेन को चोट आती है, माइंड को नहीं आती। आपके दिमाग को चोट आती है, आपका दिमाग आप देख सकते हैं, जहन नहीं देख सकते हैं आप। वो रूहानी चीज है, वो गैर मादी चीज है। तो हम 99% से ज्यादा हमारी जिंदगी उन ख्यालात की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और फिर हम कैसे उसे मादी जिंदगी में महदूद कर सकते हैं। हमारी 1/3 जिंदगी तो हम ख्वाब देखते हैं। कितना अजीब लगता है। एवरेज 8 घंटा तो सोते हैं, 6 से 8 घंटा सोते हैं। वो ख्वाबों की दुनिया है। 100 साल की जिंदगी में 33 साल हम सोते हैं और उसमें हम ख्वाब देखते हैं। और उन ख्वाबों के अंदर आप कितने कॉन्ट्रडिक्शन में होते हैं, कितने मुतजाद चीजों में होते हैं। एक ही वक्त में कहां कहां पहुंच जाते हैं जब फिजिक आपको नहीं पहुंचा सकता। आप एक ही वक्त में बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जमीन पर भी होते हैं, आसमान में भी होते हैं, न मालूम कितने घरों में कितने लोगों के साथ होते हैं। ये कोई गैर हकीकी चीज नहीं है। हम चूंकि मादी दुनिया की आंखों से देख रहे होते हैं तो ख्वाब का मजाक उड़ा रहे होते हैं, नींद का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हर रोज हमारी मुलाकात को तुम नींद में आते हो। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा।
ہم تمہیں ہر روز تو نیند میں مارتے ہیں. اللہ یتوفل انفس حین موتہا، اللہ نفس کو موت کے وقت مار ڈالتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کو نیند میں مار ڈالتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جن کی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے اللہ اسے روک لیتا ہے، اور یرسل اخرى الى قضاء مسمى، اور جو تھوڑا باقی جن کا وقت پورا نہیں ہوا ان کو کچھ مدت کے لیے واپس کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر روز نیند میں اللہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، ہر روز اللہ تمہیں مارتا ہے. تو یہ جو ہم نیند کے عالم میں جو ہوتے ہیں اور جنہیں اکثر ہم خواب کہہ کر اور ان کا مذاق اڑا دیا کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ ریئل ورلڈ ہے، وہ ایک دنیا ہے جس میں اللہ ہمارے روح کو ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اب اٹھے نہ اٹھے اس کے ہاتھ میں ہے. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. سوتے وقت اس کو سجدہ کر کے سو، یہ نہیں کہنا کہ صبح اٹھ کے کروں گا، وہ اس کے ہاتھ میں. اللہ کہتا ہے میں قبض کرتا ہوں. تو یہ ہماری خوابوں کی دنیا، ہمارے نیند کی دنیا اللہ کے نزدیک یہ ریئل دنیایں ہیں. اور اس میں ہمارا کون سا قانون کام کرتا ہے؟ جو ہمارے فزکس کا قانون ہے، کوئی نہیں چلتا. اس سے کہیں بالا تر قوانین میں ہم ہوتے ہیں. تو جو روحانی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں وہ ان کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا سے بالا تر. معجزات کہاں سے آتے ہیں؟ معجزات ہمارے اور آپ کے کاز اینڈ ایفیکٹ سے نہیں آتے ہیں. جو کاز اینڈ ایفیکٹ سبب اثر کی دنیا میں ہوتے ہیں، معجزات کے وجود سے اس لیے انکار کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے حساب سے تو یہ ممکن نہیں ہے، آپ کے حساب سے ممکن نہیں ہے، اس لیے کیا اللہ کے حساب سے بھی ممکن نہیں ہے؟ جو قانون اب تک آپ نے دریافت کیا ہے اس کے حساب سے تو ممکن نہیں ہے، مگر وہ قوانین جو آپ نے ابھی تک دریافت نہیں کیا ہے اس حوالے سے تو ممکن ہے. اور ابھی تو آپ طفل مکتب ہے خدا کے علم کے سامنے. تو جو معجزات کی بات کرتے ہیں، جو معجزات پر یقین رکھتے ہیں، معجزات پہ یقین رکھنے والے احمقانہ خیالات میں نہیں ہوتے ہیں، وہ ان اعلیٰ تر روحانی قوانین پر عقیدہ رکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ان قوانین سے کہیں بالا تر ہے، جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے اس لیے وہ چیز نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہمارے میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو شاید آپ نے پاکستان کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں. ہوگا نا آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے. شاید پاکستان کے بہت سے علاقے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے. آپ نے نہیں دیکھے تو کیا وہ نہیں ہے؟ آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہے اس لیے وہ نہیں ہے. تو ہمارے علم میں جو چیز نہیں آئی ہے وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں یہ انٹلیکچوئل ہیوملٹی اللہ کے سامنے یہ عجز و انکساری کی ضرورت ہے کہ یا اللہ جو کچھ تو نے بتایا سو بتایا، باقی جو نہیں بتایا تجھے معلوم. فرشتوں نے بھی یہ کہا تھا نا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ میرے پروردگار تو سبحان ہے، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، اس کے آگے ہمیں نہیں معلوم. تو اس کائنات میں اللہ کے اور کتنے ایسے عظیم قوانین کام کر رہے ہوں گے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں. روحانی زندگی گزارنے والے جو ہے وہ ان معجزانہ قوانین پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. جو غیر روحانی زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی زندگیوں میں ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. بھئی اچیومنٹ، ایک اچیومنٹ اورینٹڈ ان کی لائف ہوتی ہے. بھئی یہ حاصل کرنا ہے، ہمیں یہاں پہنچنا ہے، پرفارمنس ہمارا کیسا رہا، کیا ہم نے حاصل کیا. بھئی اتنے سال میں، جو کہ ہمیں آف کورس یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، خوشی ہوتی ہے. میں نے کتنے ایوارڈ حاصل کیے ہیں اور کتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں، کتنے تمغے مجھے ملے ہیں. آف کورس یہ چیزیں خوشی دیتی ہے، مگر یہ چیزیں زندگی کی حقیقتیں نہیں ہیں.
یہ اپنی جگہ پہ اپنے میننگ اپنے معنی رکھتی ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ بس زندگی میں یہ ایکویزیشن ہم نے کیا حاصل کیا، پرفارمنس میں کہاں کیا شو کر سکا لوگوں کو جا کر اور میں نے کیا حاصل کیا، اس سے بھی آگے زندگی ہے، اس سے بھی آگے زندگی ہے۔ تو جو روحانی زندگی گزارتے ہیں وہ اچیومنٹ، ایکویزیشن، پرفارمنس، اس کے مقابلے میں وہ ایتھک، اخلاقیات پہ زور دیتے ہیں، وہ زندگی کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم کوالٹی، زندگی کا معیار، تو شاید اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، بھئی بڑا مکان ہے، بڑی گاڑیاں، اچھی جگہ ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ کوالٹی آف لائف ہے، بھئی اعلیٰ معیار زندگی۔ یہ اعلیٰ معیار زندگی نہیں ہے۔ حضرت امام نے گولڈن جوبلی کے فرمان میں فرمایا کہ دیکھو جب ہم کوالٹی آف لائف کی بات کرتے ہیں تو اس سے صرف مٹیریل کوالٹی آف لائف نہیں ہے، اس سے آپ کی روح کی کوالٹی، اس سے آپ کی سول کی کوالٹی، ہمارے اخلاق کی کوالٹی۔ تو جو صرف مادی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے یا گزارتا ہے وہ صرف ظاہری چیزوں کو حاصل کرنے اور اس میں خوش ہونے کی توقع رکھتا ہے۔ جو روحانی زندگی گزارتا ہے وہ شاید حاصل کرنے کے مقابلے میں دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے، دوسروں کو ساتھ لے جانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ مولانا حضرت امام نے اپنے فرمان میں، جب مولانا نے میریٹوکریسی پر بہت سے فرمان فرمائے، میریٹوکریسی آپ جانتے ہیں بھئی قابل آدمی آگے نکل جائے گا، مولانا نے فرمایا میریٹوکریسی کا مطلب یہ نہیں قابل آدمی سب آگے نکل جائے باقی پیچھے رہنے والے کو کوئی نہ پوچھے۔ امام نے فرمایا ہم اس میریٹوکریسی کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جب میریٹوکریسی میں آپ آگے نکلیں گے تو جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے ان کا کیا ہوگا، وہ خیال کرنا یہ بھی میریٹوکریسی کا حصہ ہے۔ یہ روحانی زندگی گزارنے والے سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات کمزور لوگ جنہیں معاشرہ جگہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس عقل کی کمی ہے، صلاحیت کی کمی ہے، وہ لوگ صلاحیت والوں کو لیسن سکھا جاتے ہیں، وہ لوگ عقل مندوں کو سبق دے جاتے ہیں۔ ایک کنٹری کے اندر ڈسیبل بچوں کا اولمپک ہو رہا تھا، ابھی تو اولمپک اچیومنٹ والوں کا اولمپک ہو رہا ہے چائنا کے اندر۔ آپ جانتے ہیں جو فزیکلی امپیئرڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو جنہیں جسمانی کوئی خامیاں ہوتی ہے باڈی میں، ان کا بھی ایک اولمپک ہوتا ہے جس میں ڈسیبل بچے حصہ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کی اولمپک کے اندر ڈسیبل بچوں کی ایک ریس تھی، 8 یا 9 بچے جو ہیں وہ اس کے لائن میں کھڑے ہیں، اور آپ سوچیں ہر پیرنٹس کی کتنی خوشی ہوگی کہ ایک بچہ تھوڑا سا چل کے بھی اگر آگے نکل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو سب وہاں بڑے انتظار میں ہیں بھئی یہ اس میں کون پہلا آتا ہے۔ اور جب بچوں کی ریس شروع ہوئی اور سب اپنے اپنی کمزوری کے ساتھ دوڑنا شروع کیے ہیں تو ایک بچہ 2-4 قدم چل کے گر گیا، 2-4 قدم چل کے گر گیا۔ تو جو باقی بچے آگے بھاگ رہے تھے سب نے مڑ کے دیکھا کہ وہ گر گیا ہے۔ جو سالم لوگ ہیں ان کو یہ خیال نہیں آ سکتا کبھی، مگر وہ سب کے سب بچے رک گئے، ریس میں اولمپک میں حصہ لے رہے تھے، سب بچے رک گئے، سب پیچھے آئے، اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا اس کو، اور سب ایک لائن سے ایک ساتھ وہ اس ریس کو مکمل کیا ہے۔ کوئی پہلا نہیں، کوئی دوسرا نہیں، کوئی تیسرا نہیں۔ اس بچے کو ساتھ لے کر گئے اور دیکھو سب کے چہرے پہ کتنی خوشی ہے کہ وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ تو بہت دفعہ اس دنیا کی دوڑ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو کچل کر ہم آگے نکلے ہیں، یا ہم اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اتنا ہوش ہمیں نہیں ہوتا کہ رک جاؤ 2 قدم، کم سے کم کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کے تو اپنے ساتھ آ کے لے لو۔ کہتے زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوڑ میں سب سے آگے نکل جاؤ، بلکہ اگر ضرورت ہو
तो अपनी रफ्तार को सुस्त करो और किसी और का हाथ पकड़कर उसको जीतने के काबिल बनाओ। ये जिंदगी का मतलब है, और ये रूहानी जिंदगी गुजारने वाले ही समझते हैं। ये जाहिरी जिस्मानी जिंदगी गुजारने वालों का काम नहीं है। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रूहानियत से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं, वो इस तरह के एम्पावरमेंट में मानते हैं कि भाई सबको अपने साथ लेकर अपनी तकदीर की मास्टरी हम उसको अता करें। सिर्फ दुनिया में दौड़ धूप, एक दूसरे से आगे निकलना, मादी तौर पे आगे निकलना, जिसको अंग्रेजी में रैट रेस कहते हैं, चूहों की दौड़। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है इसके बारे में, जो इंसान मादी दौलत में और ऑफिस में धक्का मार कर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना, इसको रैट रेस कहते हैं। और किसी ने अच्छी बात कही है कि इवन इफ यू विन ए रैट रेस यू विल स्टिल बी ए रैट। इवन इफ यू विन ए रैट रेस यू विल स्टिल बी ए रैट। अगर तुम चूहे की दौड़ में कामयाब हो भी जाते हो, फिर भी तुम चूहे के चूहे ही रहो। सही बात है ना? मैं बहुत कुछ हासिल कर लिया, मगर जिन तरीकों से तुमने ये हासिल किया वो खुद बता रहा है कि तुम क्या चीज हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें बता रही है। किसी बच्चे ने शरारत की थी तो माँ उसको डांटने गई या कुछ कहने गई, तो बच्चा अपनी सफाई में कुछ कह रहा था कि भाई मैंने ये ऐसा, आमतौर पे बच्चे करते हैं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो माँ ने उससे कहा कि बेटा, वॉट यू आर स्पीक सो लाउडली दैट आई कैन नॉट हियर वॉट यू सेइंग। यानी तुम क्या हो, वो इतनी बड़ी आवाज से बोल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो वो मुझे सुनाई दे रही। थोड़ा सा डिफिकल्ट जुमला है, वॉट यू आर स्पीक सो लाउडली दैट आई कांट हियर वॉट यू आर सेइंग। तुम क्या हो वो इतनी बड़ी आवाज से बोल रहा है, यानी तुम जो कुछ हो वो इतना वाजे है कि तुम क्या बोल रहे हो उसको, उसकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। यानी इंसान जो है ना, वो खुद ब खुद उभर के हमने आ जाता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो क्या है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, कहते हैं तुम्हारे आमाल तुम्हारे अल्फाज से ज्यादा ऊंची आवाज से बोलते हैं। हमारे आमाल हमारे अल्फाज से ज्यादा ऊंची आवाज से बोलते हैं। इसलिए कहते हैं ये जो खूबियां है, ये जो वैल्यूज हैं, ये हमारे रूहानी जिंदगी की वैल्यूज हैं, और इसको जिंदगी में अपनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो गैर रूहानी जिंदगी गुजारता है, उनको ये मेडिटेशन, ख्याल में बैठना, सुकून से बैठना, ध्यान से बैठना, वो समझते हैं ये खराफात है, बेकार की चीज़ें हैं। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है तो मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। जो रूहानी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी मेडिटेशन के बगैर वो उसका तस्वुर नहीं कर सकते। मेडिटेशन यानी थोड़ी देर के लिए इबादत में, ख्याल में, एक ध्यान में बैठना, इसके बगैर हम अपनी जिंदगी से खुद अपना राब्ता खो बैठेंगे। इसलिए हमसे कहा जाता है कम से कम 15 मिनट 20 मिनट रोजाना अकेले में और खामोशी में, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, कोशिश करें ऐसी जगह ढूंढें रोजाना थोड़ी देर खामोशी में और तन्हाई में, जहां कोई डिस्टर्ब न करे हमें। वो चंद घड़ियां होती हैं जिसमें हम हमारी जात के साथ राब्ता कायम करते हैं। जब हम क्वाइटली खामोशी से बैठते हैं और खुद अपने वजूद का हमें एहसास होता है, जब हम खुद अपने ब्रीदिंग, अपने सांस लेने की आवाज सुन सकते हैं, तब हमारे पैर जमीन पर होते हैं। अपने सेल्फ से, अपनी जात से हमारा राब्ता होना बहुत जरूरी है, और वो मेडिटेशन के जरिए से होता है, खामोशी के जरिए से होता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऑल मैन्स मिजरीज डिराइव फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू सिट क्वाइटली इन ए रूम अलोन। इंसान की बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों की एक वजह होती है कि वो किसी कमरे में अकेला थोड़ी देर खामोश नहीं बैठ सकता है।
जिस इंसान की तन्हाई से दोस्ती नहीं है वो बड़ा अकेला होता है, वो बड़ा यूं कहिए कि बदकिस्मत है कि जो तन्हाई से दोस्ती नहीं कर सकता। क्योंकि हम तन्हा आए हैं दुनिया में, तन्हा जाएंगे, और हमारी एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप खुदावंद तआला की जात के साथ है जो हम तन्हाई में ही महसूस कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं। कांग्रेगेशनल इबादत अपनी जगह पर है, मगर 1-to-1 रिलेशनशिप बंदा खुदा के दरमियान जो है वो इंसान इबादत में, मेडिटेशन में और खामोशी में हासिल कर सकता है। यही वो वक्त है जब हम अपने जहन से तमाम बुरे ख्यालात, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको निकाल देते हैं। कितनी भी बड़ी मशीन दुनिया की हो, आप जानते हैं उसको सफाई के लिए रोकना पड़ता है। कितनी भी बड़ी मशीन हो उसकी सर्विसिंग करनी पड़ती है, सर्विसिंग के लिए रोकना पड़ता है। हमारा जहन भी 24 घंटा काम करता है, तो इसको भी वक्फे वक्फे से रोकना पड़ता है। और जब इसको हम खामोश करते हैं, स्टिल करते हैं, तो हमें वक्त होता है कि जो गैर जरूरी ख्यालात है हम वो निकाल देते हैं, जरूरी चीजें अपनी जात में रखते हैं। वरना ये गार्बेज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर जहनी परेशानी, वो शिकायत का मैं इबादत में ध्यान नहीं लगता, यकसू नहीं हो सकते हैं। दिस इज ए मस्ट, ये लाजमी है। तस्बीह हो, मेडिटेशन हो, गिरियाजारी हो, अकेले में, खामोशी में रोजाना कुछ वक्त हम जरूर गुजारें, वरना हम अपने साथ बड़ी नाइंसाफी करेंगे, अपने साथ बड़ा जुल्म करेंगे। गैर रूहानी जो है वो अंदर की आवाज पे भरोसा नहीं करना, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, विजदान। एक थोड़ी देर खामोश आप बैठे, आपको पता चलेगा अंदर से आवाज आती, कोई बातें कर रहा है। ये आवाज शोर में सुनाई नहीं देती है। देखिए, अल्लाह बंदे के साथ चिल्लाकर बातें नहीं करता, अल्लाह सरगोशी करता है, विस्फरिंग करता है। और सरगोशी को सुनने के लिए खामोशी चाहिए। अल्लाह बाहर से चिल्ला के हमें नहीं बताता, अल्लाह अंदर से नॉक करता है। और हम ऑलरेडी इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं लोगों के साथ कि हमें इतना टाइम नहीं होता कि अंदर की आवाज को हम सुने। सबसे बड़ी गाइडेंस जो हमें मिल सकती है वो हमारे अंदर से मिल सकती है। लुक इनसाइड फॉर गाइडेंस कहते हैं, अंदर देखो हिदायत के लिए। हमारे ज्ञान तो भरपूर है इन चीजों से कि जो कुछ है मन की दुनिया के अंदर है। तो जो गैर रूहानी जिंदगी गुजारता है वो बाहर की आवाज सुनता है। रूहानी जिंदगी गुजारने वाला जब कोई मसला सामने आता है वो कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, फिर वो अपने अंदर रेफर करता है, विजदान को रेफर करता है, अपने अंदर जो खुदा के इल्म का सोर्स है उससे बातें करता है, और उसे अंदर से आवाज आती है। विजदान की आवाज को साइलेंट वॉइस ऑफ इंट्यूशन, इसको अल्लाह की आवाज कहते हैं। और इसको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और उस तैयारी का मतलब यह है अपने आप को इतना खामोश रखें, अपने आप को इतना तैयार रखें कि अंदर से जब भी वो नॉक होता है, जब भी वो आवाज आती है, हम उसको सुनने और उसको समझने के काबिल रहे। जो गैर रूहानी जिंदगी गुजारता है वो इस कायनात को एक जाहिरी, फिजिकल, मादी क्रिएशन समझता है। रूहानी जिंदगी गुजारने वाला इस पूरी कायनात को अल्लाह की आयात समझता है और अपनी जिंदगी में आने वाले हर वाकयात में अल्लाह ताला के पैगाम को समझने की कोशिश करता है। ये पूरी दुनिया अल्लाह की आयात है। रूहानी जिंदगी गुजारने वाला और जिस्मानी जिंदगी गुजारने वाले में ये फर्क होता है कि जिस्मानी जिंदगी गुजारने वाला मसाइल जब सामने आते हैं तो उससे बेचैन होता है, परेशान होता है और मादी तौर पर, दुनियावी तौर पर उनका हल ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ हद तक ये दुरुस्त है अपनी जगह पे, मगर रूहानी जिंदगी गुजारने वाला उन मसाइल को बजाय मुश्किलात और आफात समझने के उसमें से लेसन ढूंढता है।
उसमें से अल्लाह के पैगामात ढूंढता है, उसमें अच्छाइयां ढूंढता है। भाई खुदा न खास्ता बीमारी आ गई, बिस्तर पे पड़ा है, बजाय वावेला करने के, शिकायत करने के, वो कहता है चलो कुदरत ने शायद मुझे मेरी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए मौका दिया होगा, शायद ये अल्लाह की वार्निंग है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो, उसमें से मैं बच गया हूं। वो उसमें अल्लाह के मैसेज को जानने की कोशिश करता है बजाय शिकायत करने के। और गैर रूहानी वाले जाहिरी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं कि सब चीज हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाए। रूहानी जिंदगी गुजारने वाला उसमें अल्लाह की मर्जी समझकर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि ये वाकया मेरे साथ पेश आया, इसमें अल्लाह का कोई पैगाम है, लेट्स वेट और देखो इसमें अल्लाह क्या पैगाम मेरे वास्ते देता है। तो जिंदगी के वाकया से वो परेशान नहीं होता, उसमें से अल्लाह के मैसेज लेता है, उसमें से अल्लाह का पैगाम लेता है और उसमें से सीखने की कोशिश करता है। जो गैर रूहानी जिंदगी गुजारता है वो बहुत जल्दी लोगों के साथ हिसाब किताब करने की कोशिश करता है, मुआखजा करने की कोशिश करता है। आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हिसाब किताब करो इसका जल्दी से बदला लिया जाए, इसने हमारे साथ ये किया तो हम ये करें। और उसमें वो अपने आप में सुकून महसूस करता है कि वो कितने बड़े तरीके से लोगों के साथ हिसाब चुकाता है, किस तरह लोगों से बदला लेता है। रूहानी जिंदगी गुजारने वाला बदले में नहीं जाता, वो दुनियावी हिसाब किताब में नहीं जाता। वो जानता है कि अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है, वो इन चीजों में नहीं जाता उसने मेरे साथ क्या किया। वो कहता है जाने दो, जो हो गया सो हो गया, मुझे बाकी जिंदगी गुजारनी है और मैं उसको खुदा के हवाले करता हूं। उसको मालूम है कि मैं इंसाफ करने जाऊंगा तो एक का दूसरा कर डालूंगा, वो करेगा तो बिल्कुल बराबर करेगा, वो उसके हवाले करता है। दुनियावी हालात में कुछ चीजें इंसान को करनी पड़ती है, मगर वसी पैमाने पर रूहानी जिंदगी गुजारने वाले जो हैं वो अल्लाह के इंसाफ पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, अपने आप को उन टेंशन से वो आजाद कर लेते हैं जो उनको वो सब हिसाब किताब करने के लिए जाना पड़ता। इस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलात, अल्लाह ने फरमाया सब्र और सलात से अल्लाह की मदद मांगो। सब्र खुद अपनी जगह पर एक मदद है। लोग कहते हैं यार मैंने सब्र कर लिया, सब्र करने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने छोड़ दिया सब कुछ। सब्र खुद अपनी जगह पे अल्लाह की मदद है। सब्र का मतलब यह है कि मैं जानता हूं अल्लाह का कानून अंधा नहीं है, इंसान का होता है और मेरा अल्लाह उसका हिसाब करने वाला है। मैं उन चीज में हाथ नहीं डालूंगा, खुदा उसका हिसाब करेगा। और वो अपने टाइम पे का सब चीजें इस तरह खुल के सामने आ जाती है कि हैरान रह जाता है इंसान कि देखो खुदा का इंसाफ कैसा है। तो जब हम रूहानी जिंदगी की बात करते हैं दीनदारों, तो रूहानी जिंदगी कोई महदूद सी दुनिया नहीं, कोई महदूद सी चीज नहीं है जो सिर्फ आप चार दीवारी में बैठकर खुदा के घर में आकर जिक्र तस्बीह के जरिए से गुजार सके, बल्कि हमारा जीना, जिंदगी का हर पहलू, हमारी तालीम, हमारा कारोबार, हमारी खानदानी जिंदगी, हमारा लेन देन, मादी जिंदगी, ये सब पे रूहानियत काम करती है। और जब ये सब चीजें, इन तमाम चीजों में हमारी रूहानी जिंदगी को हम फौकियत देते हैं तो वो हमारी सही माना में रूहानी जिंदगी होती है। और बिलाकर मौला ने फरमाया लाइफ इज द शॉर्ट पैसेज इन इटर्निटी, जो अबदियत का रास्ता है उसमें ये जिंदगी एक छोटा सा पैसेज है। तो अबदियत के मुकाबले में हम एक घड़ी दो घड़ी इस दुनिया में गुजारने के लिए आए हैं। कहते हैं ये जिंदगी जो है मोहब्बत करने के लिए भी बहुत शॉर्ट है, तो नफरत करने का टाइम किसके पास होगा। ये जिंदगी अच्छा काम करने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है, तो बुरा काम करने का वक्त कहां से लाएंगे। ये जिंदगी छोटी सी, लोगों की अच्छाइयां देखने में भी हमें टाइम नहीं है, तो बुराइयां देखने का टाइम कहां से लाएंगे। ये रूहानियत के दर्स हैं और इस रूहानी मजलिस में हमें ये तालीमात दी जाती है कि अपनी जिंदगी की बुनियाद रूहानियत पे रखें, अपनी
خاندانی زندگی کی بنیاد روحانیت پہ رکھے، اپنی دنیاوی زندگی کی بنیاد روحانیت پہ رکھے۔ روحانیت میں ہمارے بہت سے دنیاوی مسائل کا حل موجود ہے۔ خدا بھی نور مولانا شاہ کریم الحسنی حاضر امام ہم سب کو ہمیشہ روحانیت کے راستے پہ بھرپور رکھے، مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سخی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیدار خمار بات جو ان عشق ہنر ہند، دیدار خمار بات جو ان عشق ہنر ہند، بیانگ من فتن جو توحید نظر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
روحانیت عشقین داستان سل عالم بالار دور عشقین داستان سل عالم بالار مولا علی یا شاہ
yıktım uyum Secde-i Adem loşa Secde-i dastan esel Alemi balar dukun Senle alişer Işk-ı gar Nur-e mahale yalulum İşk-ı gar-e azan sel عالم بالا کو